Welcome students. Today we are going to discuss the next section of the chapter, the 100 dresses, part 2. It's from class 10's English first flight and this chapter number is 6. Once again, you can say it's a reminder that this chapter consists of two parts, the 100 dresses part 1 and part 2. The whole story goes on and revolves around two girls, Peggy and Maddie. There is also a girl called Wanda. Wanda is a Polish girl. She is living in America and studying in the same school in which Peggy and Maddie are studying. Peggy always makes fun of Wanda because of her the number of dresses. She replies to her question that how many dresses do you have? And this makes Peggy angry. And that's why she keeps on teasing her with the same question and getting there. When she gives the answer, they laugh on her, and this process is going on. There is a drawing contest also going on in the school in which Wanda has won the first prize, and if she has drawn 100 dresses on paper, then only Peggy and Maddie realize that Wanda is not speaking or not saying false statements. She actually does have 100 dresses and all lined up in her closet. She has made them on the paper. Okay, now this makes Peggy and Maddie feel guilty. Also, there on the announcement of the prize result day, there comes also a note from the father of Wanda that says that their children will not be coming to school anymore because they have been teased for their funny names or their funny looks. This has made even more feel guilty to Maddie and Peggy. Now they have thought over it and they have decided that they will go and meet Wanda in person, and that's why they have went to walk inside. There they find out that the girl has already left the house. The whole family was not in there and they had to return from there empty-handed. They couldn't apologize or not they can give the result information. So after coming back from the Wanda's house empty-handed, Maddie has made herself a resolution that from now on she will not remain behind and go on. She will not remain behind when someone gets bullied. She will get onto it and she will fight for the other party. You can say who is bullying, she will be fighting against him. Now, coming on to the next section of the today's section. We are starting from here. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Mithonsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. वो शनिवार मैडी और पेगी दोपहर में एक लेटर लिखते हुए बिताया. वो लेटर वो वेंडा ट्रॉन्स्की को लिख रहे थे. वो एक सामान्य लेटर था, एक दोस्ताना लेटर था जिसमें वो लोग जानकारी दे रहे थे वेंडा को कि उसने प्राइज जीत लिया है या रिजल्ट के बारे में जानकारी दे रहे थे about the drawing contest result. They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. उन लोगों ने उसमें बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी अच्छी हैं और साथ ही साथ उन्होंने उसमें ये भी पूछा कि वो जो नई जगह जहां वो रह रहे हैं वहां वो जगह उसे पसंद आई क्या, या फिर जो नया टीचर उसको मिला था वो टीचर उन्हें पसंद आया क्या. They had meant to say sorry. They were sorry. They had meant to say they were sorry. But it ended up with them just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. And they signed it with lots of X's for love. तो उसमें वो लोग ये तो पूछ रहे थे, अब ये लेटर एक्चुअली में क्या था. ये लेटर में वो लोग सॉरी बोलना चाहते थे, अपोलोजाइज करना चाहते थे, लेकिन उसमें वो सॉरी उन्होंने कहा ही नहीं. उल्टा ये क्या हुआ कि वहां पर वो एक ऐसे लेटर के रूप में परिवर्तित हो गया जैसा कि कोई एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को लिखता है. और उस लेटर में उन्होंने आखिर में खूब सारे एक्सेस, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां एक्सेस एंड ओस का यूज किया जाता है. एक्सेस आर मेंट फॉर लव, so they signed it with lot of X's.
They made the letter to Boggin's Heights, writing please forward on the envelope. उन्होंने बॉगिंस हाइट का जो उसका एड्रेस था उस पर वो लेटर भेज दिया। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि पता तो उन लोगों को भी है कि वो लोग बॉगिंस हाइट में नहीं है, तो उन्होंने बॉगिंस हाइट पर लेटर क्यों मेल किया? तो उन्होंने ये क्या किया कि बॉगिंस हाइट का एड्रेस तो लिखा, लेकिन साथ ही साथ वहां लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। ये एक नोट था फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट कि ये जो पर्सन जो बॉगिंस हाइट में रह रहे हैं वो किसी दूसरी जगह मूव कर गए हैं, तो उनको वहां इस चिट्ठी को पहुंचा दिया जाए। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hot and angry she was not going to answer. You could not blame her. कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लेटर भी लौट कर नहीं आया। शायद इसके कारण ये था कि वेंडा ने उसे रिसीव तो कर लिया है, लेकिन वो इतनी नाराज है, उसे इतना दुख हुआ है कि वो उसका जवाब देना नहीं चाहती है, और इसके लिए हम उसे दोष भी नहीं दे सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? तो अब कई हफ्ते बीत गए थे, वेंडा ने अभी तक कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। पैगी अब सारी चीजों को लगभग भूलने लगी थी। मैडी अब सोते हुए तैयारी करती थी वेंडा के लिए कि वेंडा को किस तरह से भीड़ से बचाना है जो उसको टीज कर रहे हैं, ये पूछते हुए कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. और वो मन ही मन तैयारी कर रही है, वो केवल सोच रही है, यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रही है कि अब जो होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो तैयार कर रही है अपने आप को। क्या कहती है? And right before Wanda could, भीड़ जो है उससे पूछ रही है कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितने हैं, और इससे पहले कि वेंडा अपने होठ चुपचाप से दबाए, जैसा कि वो हमेशा आंसर देने से पहले दबाया करती थी, वो दबाए उससे पहले ही मैडी चिल्ला उठती स्टॉप, और उसके बाद सभी लोग शर्मिंदा हो जाते, जैसा कि वेंडा को महसूस हुआ करता था। ये मैडी ने कभी असलियत में नहीं किया है। मैडी ने लेटर लिखा है, लेटर का कोई जवाब नहीं आया है, और इससे अवसाद में है वो, ठीक है ना, वो ग्रसित है, गिल्ट फीलिंग में है, उसे अफसोस है अपने किए का, पछतावा हो रहा है, और इसी कारण से वो ऐसा सोच रही है सोने समय। Now it was Christmas time and there was snow on the ground, Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस का समय आ गया था, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी। जो उनका क्लासरूम है उसमें क्रिसमस का एक पेड़ और घंटियां उसमें लगाई गई थी, जो क्लास को सुंदर बना रही थी। स्कूल का आखिरी दिन था छुट्टियों से पहले का, और उस दिन टीचर ने लेटर दिखाया क्लास में, जो उन्हें इसी सुबह प्राप्त हुआ। Who remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written to me and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read one letter to you. तो मिस मेसन जो उनकी क्लास टीचर है वो कहती है कि आप लोगों को याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, वो गिफ्टेड लड़की जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है, और अब मैं उसको उसका मेडल जो जीता है उसने वो मेडल भेज सकती हूँ। मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो उसने मुझे भेजा है। The class sat up with a sudden interest and listened intently. और वो क्लास जो है अचानक से शांत हो गया, चुपचाप से सभी लोग उस लेटर को सुनने लगे। ये लेटर है, लेटर में क्या कहता है? Dear Miss Mason, how are you in room 30? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones, all kind of in my class.
मैडी द ब्लू वन, और उसकी मैडी जो फ्रेंड है उसको ब्लू वाला ड्रेस दिया जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माय न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। और क्रिसमस के दौरान मैं उस स्कूल को याद करूंगी और मेरे जो नए टीचर हैं वो आपके साथ समानता नहीं कर सकते हैं। ये सम्मान में उन्होंने कहा है, सम्मान में वेंडा ने टीचर्स के कहा है। और उसके बाद वो ग्रीट करती है कि सभी को मेरी क्रिसमस, और उसके नीचे वो लेटर एंड कर रही है योर्स ट्रूली वेंडा ट्रॉन्स्की। दिस इज द लेटर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये पहले का लिखा हुआ बुक है, पहले का लिखा हुआ लेटर है, एंड इन द ओल्ड वन द लेटर वाज रिटन और the last section was written on the right hand side of the letter, but now it has changed and had come to the left area. So now from now on, or you can say, you should know that this section is written here and you must write your truly or your obedient anything on the left side of the letter. Now getting back to the chapter, on the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and hollies in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked in the window. Candy, peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was strung. तो वो लोग जब रास्ते में घर जा रहे थे, मैडी और पैगी अपना अपना ड्राइंग अपने हाथों में लिए हुए थे। रास्ते के जितने घर हैं वो सभी के सभी, क्योंकि क्रिसमस का मौसम था, सभी तैयारी कर रहे थे, सभी घर सजे हुए थे। जो ग्रोसरी स्टोर है यानी जो राशन की दुकान है जहाँ सामान्य चीजें मिलती है, वहाँ सैकड़ों क्रिसमस ट्री रखे हुए थे और खिड़कियों पर कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स। आपने देखा होगा एक रेड कलर का स्टिक जो है पेपरमिंट स्टिक कहा जाता है। दिस इज द वेरियस इमेजेस ऑफ कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स। These are used in Western countries. It is found very abundantly, and generally this is a, you can say, symbol of Christmas. So there were various candy peppermint sticks hanging in the window and cornucopias. Cornucopias are the decorative containers which are full of flowers and fruit. वो लगे हुए थे खिड़कियों के ऊपर। The air smelled like Christmas and lights shining everywhere reflected different colors on the snow. हवा जो है ऐसा उसमें गंध था जैसे क्रिसमस हो, ऐसा ये केवल एक इमेजरी है। हवा मतलब क्योंकि चारों तरफ माहौल बना हुआ क्रिसमस का, तो वो वही कह रहा है कि चारों तरफ की हवा में ऐसे सुगंध थी जैसे क्रिसमस हुआ। जो घर में लाइट्स लगे हुए थे उनमें अलग अलग रंग जल रहे थे और वो स्नो के ऊपर अलग अलग रंग दिखा रहे थे। स्नो बॉय सेड Peggy, this shows she really likes us. She got our letter and this is her way of saying that everything is all right, and that's that. I hope so, said Maddie. She felt sad because she knew she would never see the little tightly Polish girl again, and she couldn't ever really make things right between them. तो Peggy क्या कहती है कि बहुत मतलब ये उनका एक एक्सप्रेशन है कि ये बताता है कि वो हमें पसंद करती है, और ये भी बता रहा है कि उसको लेटर मिल चुका है और उसका ये कहने का तरीका है, उसने जो ड्राइंग हमें दी है उसका ये कहने का तरीका है कि सारी चीजें सही है। मैडी उसका जवाब देते हुए कहती है कि मुझे भी ऐसी ही आशा है। उसे उदासी थी इस बात की क्योंकि अब वो जानती थी कि वो कभी भी उस लड़की को दोबारा नहीं देख पाएगी और चीजें उनके बीच में कभी भी सही नहीं हो पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room became alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing but Vanda had been nice to her. वो घर गई, उसके घर का जो बेडरूम है, बेडरूम का वॉलपेपर कहीं फटा हुआ था, तो उस वाले हिस्से पर उसने अपनी ड्राइंग, जो उसको ड्राइंग मिली थी वेंडा की तरफ से, उसने उस ड्राइंग को वहां पर पिन करके लगा दिया। वो शैबी रूम, वो उदासी भरा रूम जो है अचानक से जीवित हो उठता है उस केवल पेंटिंग के रंग के कारण ही। मैडी नीचे बैठ जाती है बेड पर और उस ड्राइंग को देखती रहती है। वो क्योंकि जब भी वेंडा का मजाक उड़ाया गया
वो हमेशा वही खड़ी रही, लेकिन वो कभी भी उसने कुछ किया नहीं था उसके लिए। Tears blood her eyes and she gazed for a long time at the picture, then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. आंख से उसकी आंसू गिर रहे थे, जिसके कारण उसकी आंखों में धुंधलापन सा आ गया था और वो काफी देर तक पिक्चर को देख रही थी। तभी अचानक से वो अपनी आंखों को साफ करती है, रगड़ती है, आंसुओं को पोंछती है और पिक्चर को ध्यान से देखती है। The colors in the dress was so vivid that she scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her. Maddie, it looked really like her own mouth. Why it really looked like her own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Paris. तो वो जो है ड्रेस का रंग, वो अपनी आंखों को रगड़कर क्या देख रही है ड्रेस में? तो वो देख रही है कि ड्रेस का रंग इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसने अभी तक उस ड्राइंग के चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया था और वो बिल्कुल मैडी की तरह ही दिख रहा था। मैडी कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही इसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन ये मेरी तरह क्यों दिख रहा है? क्या वैंडा ने सही में इस ड्राइंग को मेरे लिए बनाया है? उसके बाद वो पैगी के लिए दौड़ पड़ती है, यानी पैगी के घर की तरफ दौड़ पड़ती है और कहती है, Peg, she said, let me see your picture. कि let me see your picture, मुझे तुम्हारा पिक्चर देखने दो। What's the matter? asked Peggy as she clattered up the room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. तो पैगी उससे पूछती है, क्या कारण है पैगी? उसके बाद वो दौड़ते हुए उसके कमरे तक जाते हैं जहां वैंडा की ड्राइंग उल्टा पड़ा हुआ था उसके बेड के ऊपर। मैडी उसको ध्यानपूर्वक उठाती है। ये क्या बता रहा है पैगी के बारे में? उसका ड्राइंग नीचे पड़ा हुआ था। ये बता रहा है कि दो रीजंस हो सकते हैं, या तो उसने सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर लिया था और वो उस ड्राइंग की तरफ देखने के कारण उसको पछतावा हो रहा था, दूसरा कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था वैंडा ने उसके लिए क्या किया है या वैंडा के साथ उसने क्या किया है। तो वो वहां जाती है उसके कमरे में, मैडी उठाती है और कहती है, लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। वो कहती है कि देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, तुम ही हो, और उसका हेड और जो फेस है वो बिल्कुल पैगी की तरह ही दिख रहा था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. और पैगी कहती है, मैंने क्या कहा था? वो सच में हमें पसंद करती थी। Yes, she must have agreed, Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda, standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls. After she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. तो वो क्या कह रही है? मैडी उसकी बात से राज़ी होते हुए कहती है, हाँ वो हमें बिल्कुल पसंद करती होगी, और वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को पोंछ देती है जो ये सोचते हुए, यहाँ पर वो कुछ सोच रही है, अपनी सोच को प्रदर्शित कर रही है और कहती है कि जब भी वैंडा के बारे में मैं सोचती थी, जब भी वैंडा उस सनी स्पॉट स्कूल के जो यार्ड है उसके सनी स्पॉट में अकेली खड़ी रहती और जो लड़कियों का ग्रुप है वो उसके ऊपर हंसते हुए चला जाता, और उसके बाद वो पूछती या कहती कि हाँ मेरे पास बिल्कुल 100 हैं, सभी के सभी लाइन से लगे हुए हैं। तो ये सोचते हुए मैडी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे और वो उन आंसुओं को पोंछ देती है और कहती है, हाँ मुझे भी लगता है कि शायद वो हमें पसंद किया करती थी। सो दिस इज़ द एंड. You will get the short questions shortly. So thank you for today. That's all.